हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And today is a special day because we've got a big game coming up for all of you. And उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है. And we're looking forward to a very happy evening tonight. Courtesy, a good performance by the boys in green. Hopefully. Now, let's get on with the business. I am joined in the pavilion by four former Pakistani captains, four outstanding minds of the game of cricket, four gentlemen who have served the game of cricket really well and Pakistan really well. First up, I've got the young dynamic, one of the finest fielders, very good running between the wickets, and a good finisher of the game. I've got Mr. Shoaib Malik. Shoaib, good afternoon. Good morning, good afternoon. Assalamu alaikum, everyone. Next up, Mr. Dependable, always holding the batting order together whenever there was a disorder in the batting lineup. The most successful Test captain in Pakistan's cricket history, I've got Misbah al-Haq. Assalamu alaikum, Misbah, and welcome. Walaikum assalam. Assalamu alaikum to everyone. Next up, गलती से मैंने कह दिया था कि वो इनकी 10 की 10 उंगलियों का मैंने जिक्र कर दिया था. बात फिर भी वही की वही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए. 8 टेढ़ी उंगलियों के साथ और 2 सीधे अंगूठों के साथ I've got one of the most finest wicket keepers the game of cricket, a great captain for Pakistan, a man of crisis, Moin Khan. Moin, the Silver Fox. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum everyone. अगर घी ज़्यादा हो तो अंगूठे भी टेढ़े कर सकते हो. मिसबा ने कर दी ना फिर क्यों वाली गल. And finally, the cricket royalty in the house with us is the Sultan of Swing, the undisputed king of all rounders. आज के दिन इन्होंने एक डबल सेंचुरी भी गाड़ी थी right here in Sheikhupura against Zimbabwe. And so it's a historical day, it's a special day, one of the finest that we've ever seen. Welcome. Wasim Akram. Wasim, assalamu alaikum. Good morning. Assalamu alaikum everyone. Hope sab theek thaak hai and excited for the day today because it's a big game. It is. But look, Lamner, I'm talking about your big game. 257? 257? यार फिर तुसी मेरे छिक्के नहीं देखे. I actually can say that. You can. Before we start, I request Wasim भाई वो जरा ये वाकया जरूर बताएं. विकी का 2 दिन पैड करे बैठा रहता. I think last year विकी ने ये डिस्कस किया था ये. जी 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 जी. दोबारा बता. आगा बाटा कलेक्शन में से ये मेमोरी शेयर करते हैं. उस दिन I think 2 दिन बैटिंग की थी 9 घंटे. 9 घंटे मैंने पूरी जिंदगी की इनिंग्स में ला लूँ तो मैंने बैटिंग नहीं की होगी. I don't know what happened that day. I was in the zone. I can say that now. I was in the zone. मैं और मेरी और सकलैन की पार्टनरशिप बड़ी लंबी लगी. I think it's still a world record for 8th wicket in Test cricket. So जब वो आउट हुआ तो विकी अंदर आ रहा था. मैं विकी के पास गया. मैं कहा विकी ये गाय विटल स्लो है बट इसका गेंद अंदर आ रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, तो पहला गेंद है जरा देख के खेली. तो वकार का आगे से मुझे बड़ा फनी आंसर उसने दिया. वकार बिंग वकार. He said पॉइंट तुसी 2 दिन तो बैटिंग कर रहे हो तांते अंदर नहीं आया तो मैंने कितने अंदर आ जाना. खैर वो स्माइल करके ये चला गया क्या कि 2 दिन से आपको तो अंदर नहीं आया, मुझे कहाँ से आ जाना है. वो पहला गेंद ही उसने किया, वो बाय द वे इतना अंदर आया. और विकी ऐसे खेला है मिडिल स्टंप वो कीपर को तो विकी मेरे लो ऐसे सर झुका के गुजर गया. Well, memories. Thank you for sharing that with us. वापस चलते हैं to the business of the ICC Men's World Cup. Now, yesterday we had another game, the first game in Pune. It was India versus Bangladesh. Bangladesh, they're struggling. They won the toss, but it was India. It was an India show. It was Rohit Sharma. It was Gill. It was Virat Kohli, the alien that walks amongst us. This is the match summary आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. This is how it went down. It was Bangladesh batting first, 256. They had a great opening partnership there. Tanzeel showing some great class, some great talent there. But look at the Indian bowling. Everyone, Jadeja, Bumrah, Siraj, all contributing. In fact, Kuldeep also picked up a wicket. In response, it was the Virat Kohli show, but it all started by that blazing innings by Rohit Sharma and that Gill contribution. Let's not forget that KL Rahul also played an important role there, supporting Kohli in getting that century. And that's how it won. India winning that by 7 wickets. So इसके साथ ही आप लोगों को लेकर चलते हैं points table की तरफ to see how the points table is poised right now as we stand today. It is New Zealand on top with a very good net run rate of 1.92, but India trailing right behind them. 4 games, 4 wins. Both these teams look unstoppable at this time. South Africa, that also looked extremely dangerous, got a shocker by Netherlands. They stand at the 3rd position. Pakistan also
also holding on to its fourth position, but with a minus net run rate. And Pakistan is going to be eyeing that net run rate because the net run rate will come into play at some stage. England right behind Pakistan, and today Pakistan clashes with Australia, who are sitting at number 6. And then onwards you can see Bangladesh, Netherlands, Afghanistan, Sri-Lanka. याद रहे कि टॉप की 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी. तो आज है जनाब बड़ा मुकाबला. आज हम आपको लेकर जा रहे हैं. ये मैच आइडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. दिस इज द गेम दैट वी आर गोइंग टू बी विटनेसिंग. इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, एंड वी आर गोइंग टू बेंगलुरु फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप. A very special venue this is. Australia versus Pakistan. Pakistani fans everywhere in the world super excited to see this. Let me start off with you, Wasim. Both Australia and Pakistan have somewhat issues in this World Cup that they're dealing with. In their spin department as well, in their batting orders as well, and all that and everything. Though both have kind of done some kind of recoveries, but let's talk about the problems because both teams want to win. Problems are there, but it is a massive game for the both sides because एक के 4 पॉइंट हैं, एक के 2 पॉइंट हैं. एंड ऑब्वियसली दोनों टीमें को इतनी स्ट्रॉन्ग लगी नहीं है. अभी ऑस्ट्रेलिया 3 में से 2 आ रहा है, पाकिस्तान 3 में से 1 आ रहा है, एंड बुरी तरह आ रहे हैं इंडिया से हम. और यहाँ से टेम्पो बन सकता है ईदर टीम का जो आज जीतेगा. और बेंगलुरु जो हमने देखा है ओवर द ईयर्स, इवन PSL हालांकि लास्ट 10 साल में सिर्फ 3 ODIs हुए हैं और उसमें भी 300 एवरेज स्कोर था फर्स्ट इनिंग का. और हमने IPL में भी देखा बेंगलुरु में 240, 245, 230 कैन चेज भी हो जाता है. इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, इट्स अ गुड पिच. एंड या प्रॉब्लम्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक मेन प्रॉब्लम था वो था जैम्पा. उसने विकेटें ले लिया पिछले मैच में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा. उसने बॉल टर्न नहीं किया, उसने सिर्फ तेज़ गुगली या विकेटों में किया है. सो ये उसकी सक्सेस का राज था. And coming back to Pakistan, our spinners are the worst in this World Cup so far, especially in the mid overs. जो stats बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पीछे ना पै जाना. But ये stats बता रहे हैं, तो आप ये देखना है कि playing 11 क्या होगी. There are a lot of ideas of people on social media in general cricketing circles में कि शायद शादाब को ड्रॉप करें, उसामा को खिलाना चाहिए. We'll discuss this in length. Yeah. But yeah, Pakistan having a bit of a problem, and today is the day. If they win, whichever team wins, they probably be on the right track. मोमेंटम का बड़ा इसमें रोल होगा आगे. पाकिस्तान, शोएब इज़ कमिंग बैक ऑन ए वेरी बिग डिफीट इंडिया के खिलाफ. और वो कहते हैं कि क्यों ये डिफीट बड़ी है या क्या वजह है. तो लोगों को बताते चलें, दिस इज़ द बिगेस्ट मैच इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है. तो ज़ाहिर बात है इसका प्रेशर भी बिल्कुल ही अलग नौइयत का होता है. एंड आफ्टर दैट डिफीट अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान नीड टू गेट बैक इन टू दैट राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू गेट दैट मोमेंटम बैक. What is the Pakistani team been doing in the last few days, and how are they preparing for this clash? I think after that big loss, as we all know, India-Pakistan game is a massive game, not just for us, for rest of the world as well. तो अच्छी चीज़ ये हुई कि 5 days का गैप आ गया बीच में. बट एट द सेम टाइम थोड़ी बुरी ये भी चीज़ हुई कि कुछ हमारे प्लेयर्स थे वो बीमार भी हुए. बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन ये है कि आई एम श्योर दे हैव बीन लुक्ड आफ्टर और सारे प्रोफेशनल्स हैं. गैप मिला होगा, आई एम श्योर. ज़्यादा आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, बाहर नहीं आ जा सकते ज़्यादा, तो आपस में बैठे होंगे. आई एम श्योर थिंक टैंक ने भी डिस्कस किया होगा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो कि हम किसके अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं. तो वो भी एक स्ट्रगलिंग टीम है. बट ये है कि उनमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं. तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है, हमें मेन गोल ये होना चाहिए हाउ टू टेक विकेट्स. क्योंकि जब विकेट्स लेंगे तो आप दूसरी टीम को अपनी तरह ढाल सकते हैं जिस टाइप की आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि हमारे पास मोस्टली कन्वेंशनल जो है वो बैटर्स हैं, वो मतलब थ्रू द लाइन खेलना पसंद करते हैं. हाँ, मिडिल ऑर्डर में एक इफ्तिखार ऐसे बैटर हैं जो बड़े शॉट्स भी लगाते हैं बाद में, लेकिन उनको अपनी तरह की क्रिकेट, जैसे न्यूजीलैंड खेलता है, वो किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलता है, वो अपने टाइप की उनको फोर्स करता है ब्रांड ऑफ क्रिकेट कि हमारे टाइप की क्रिकेट खेलो एंड देन बैटल अगेंस्ट अस. तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी सिमिलर है न्यूजीलैंड की तरह. तो इनको कोशिश यही करनी चाहिए और पैनिक नहीं हो कभी भी. अगर कोई पार्टनरशिप लग गई या 2-3 आउट हो गए, पैनिक नहीं हो. इट्स अ मैटर ऑफ कि 1-2 बैटर या 1-2 बॉलर्स के अच्छे स्पेल्स जो हैं वो आपको मैच जितवा सकते हैं. और जैसे वसीम भाई ने कहा कि हाई स्कोरिंग जो है वो वेन्यू है जहाँ पे 286, 334, 383 रन्स बने हैं.
तो कुछ भी हो सकता है गेम में, बट डोंट पैनिक थ्रू आउट द गेम. All right, do not panic. That's what Shoaib Malik has to say. Let me bring this to you, Misbah, now. High scoring ground, जिस तरह वसीम ने अभी आपको शुरू में बोला, और इस ग्राउंड के स्टैट्स जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. 27 ओडीआईज यहाँ पर बेंगलुरु में हो चुके हैं अब तक, और ये 8वां वर्ल्ड कप का यहाँ पर मैच है. इस दफ़ा ये पहली दफ़ा पहला है इस ओडीआई इस वर्ल्ड कप में, और लास्ट 3 जो इधर पहली इनिंग्स का टोटल है वो 286, 334, 383 जो है वो रहा है. नाउ इट लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी नॉट एन ईजी प्लेस. अगर आप बड़ा टोटल पहले लगा भी दे बैटिंग करके, उसको डिफेंड करना भी मुश्किल हो सकता है यहाँ पर. जी बिल्कुल, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट हुई है तो बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना यहाँ, बिकॉज ऑफ द बाउंड्री डायमेंशंस. और लेटली अगर पिच भी देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग पिच होती है. आप रॉयल चैलेंजर्स के भी मैचेस जब देखते हैं, T20 ज़्यादा हुई है यहाँ पे IPL में, तो विराट कोहली, AB डिविलियर्स के रिकॉर्ड सामने हैं. वो उनकी सेंचुरियाँ सबसे ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द बाउंड्री डायमेंशंस और जिस तरह की पिच है. लेकिन बात यह है कि वर्ल्ड कप का मैच है, प्रेशर मैच है, दोनों टीमों की जो सिचुएशन है इस टाइम पे, आई थिंक उसको देखते हुए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे खेलती है तो पाकिस्तान को ये ज़रूर देखना चाहिए कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है उनकी फास्ट बॉलिंग है, और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अर्ली ऑन अपनी फास्ट बॉलिंग पे. अगर उसको हम टैकल कर लेते हैं, मिडल में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है, हम बड़ा स्कोर कर सकते हैं. स्पिनर उनके उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहे. मैक्सवेल नॉन रेगुलर स्पिनर हैं. मिडल ओवर्स में हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. ये ऐसा ग्राउंड है कि यहाँ पे अगर चलें, स्टार्ट में आपने सिर्फ प्रिजर्व भी कर लिया अपनी विकेट्स, तो बाद में क्योंकि छोटी बाउंड्रियाँ आप उसको कैचअप कर सकते हैं. तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए, स्टार्ट कैसे करते हैं. ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग में, पाकिस्तान बैटिंग में उसका अर्ली ऑन कैसे. और फिर पाकिस्तान के जो मैचअप्स हैं बॉलिंग में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर, मिच मार्श अगर ओपन करते हैं तो शाहीन इज़ अ वेरी गुड मैचअप. दोनों, वार्नर स्ट्रगल करते हैं, अगर अच्छी जगह से शाहीन बॉल करते हैं, इवन हसन बॉल उनका बाहर भी निकलता है और मिच मार्श को अंदर आता है. We'll talk about the players when we go along in this conversation, Misbah. But let's take a look at venue की बात कर रहे थे, तो ये venue का एक feature है, ये नजर डालते हैं. Very nice there. Moin, I know you've played here as well. In fact, Wasim bhai was the captain. Wasim was captaining. You had the final 1999 of the Pepsi Cup right here, right? Yeah, against India we won that match. And so great memories. Great memories. बिल्कुल. एक ग्राउंड एक तो छोटा बहुत है, पिच बहुत ज़बरदस्त होती है, बैट पे बॉल आती है. हमने पहले बैटिंग की थी and we scored around 280 something. I don't remember that game at all. But we won the Really? final. हाँ. और ये 99 वाला टूर था You won the final against India. You don't remember? No. No, but इंडिया के खिलाफ वसीम भाई के होते हुए जब हम लोग, हमारा एरा था, उस वक्त बहुत मैचेस जीते इंडिया के खिलाफ. वही लीड आज तक आपको नजर आती है. जो गैप नजर आ रहा है, जो कम होता जा रहा है, जो गैप हमारे लिए. All right, but anyway, great memories, and we're going to talk more about this. But we're going to take a break right here in the Pavilion. But when we come back, there's more. We get closer to the action. It is Pakistan versus Australia. Stay with us on A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं A Sports, Pakistan's first ever HD sports channel. Along with that, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. Today we're taking you to Bengaluru, where Pakistan will be clashing with Australia. अब से कुछ लम्हा पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, हम लोग बात कर रहे थे बेंगलुरु के वेन्यू के हवाले से. अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हेड टू हेड काउंट के बारे में. इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं ये स्टैट, 10 दफ़ा सामना किया एक दूसरे का वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर. ऑस्ट्रेलिया 6 दफ़ा ये मैचेस जीती है और पाकिस्तान 4 दफ़ा ये मैचेस जो है वो जीता है. So this is how the head-to-head count is. ये याद रहे कि in the previous World Cup match 2019 also Pakistan lost, 2015 वाला भी हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे. So this is going to be very interesting to see how this comes out. Does Australia have an advantage here, Moin? देखिए, डिपेंड करता है. पाकिस्तान नो डाउट पिछला मैच ज़रूर हारा है, बट पाकिस्तान के जब भी लाइक ऐसी पोजीशन होती है, पाकिस्तान के अंदर ये एबिलिटी है, बड़ा ज़बरदस्त कम बैक करते हैं. पाकिस्तान के अंदर एबिलिटी मौजूद है. हर टीम को ये तो पता है कि किसी वक्त भी कम बैक हो सकता है, बट अगेन डिपेंड, नो डाउट ऑस्ट्रेलियन ऑल्सो दे वन देयर लास्ट मैच. लेकिन जो एक फॉर्म और एक फ्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया का है,
वो अभी तक इनके बैट्समैन में नज़र नहीं आया। स्पेशली वार्नर को कहूँगा, वार्नर ने स्कोर नहीं हुआ, स्मिथ से स्कोर नहीं हुआ, मैक्सवेल भी कोई ऐसे टच में नहीं, ऑल्दो के पिछले मैच में इंग्लिश ने रन किए हैं, मिचेल मार्श से थोड़े बहुत रन हुए, लेकिन वो जो टच एक सॉलिड टीमों का रहा है हमेशा, ऑस्ट्रेलिया का स्पेशली जिसकी वजह से 5 वर्ल्ड कप भी ये ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है अभी तक, वो टच नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर्स। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ स्पिनर्स की होगी इस मैच के अंदर, और सुनने में यही आ रहा है। और मेरा भी सजेशन होगा, क्योंकि शादाब से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे चांस देना चाहिए एक प्रॉपर स्पिनर को, जिसमें उसामा मीर मौजूद है जो बड़ा टर्न करते हैं। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ नवाज़ की और उसामा की इस मैच के अंदर, कि वो जिस तरह आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू करें, प्रेशर डालें मिडल ऑफ द इनिंग्स, और ऑस्ट्रेलिया को अगर वो पहले बैटिंग करते बड़ा स्कोर ना करने दें यहाँ पे। राइट, स्पिनर्स की आप बात कर रहे हैं मोइन, तो वीव गॉट ज़ैम्पा विद अस, लेट्स लिसन इन। राइट जनाब, स्पिनर्स की बात हो रही थी तो ये ज़ैम्पा के ऊपर फीचर आपको हमने दिखाया। मिसबा, लेट मी ब्रिंग दिस कन्वर्सेशन टू यू नाउ। मोइन ने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को इतनी खास नहीं चल रही, एंड देयर स्ट्राइक रेट हैज़ बीन द वर्स्ट इन दिस वर्ल्ड कप सो फार। हाउएवर, मिच मार्श का भी जिक्र किया इन्होंने और इंग्लिश का भी जिक्र किया, दैट बोथ ऑफ देम एक्चुअली गेव दैट assurance to the Australian batting in the last game कि वो ख़त्म कर सके उसको. How do you see that it is, because Australia जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान bounce back करती है, let's not forget that Australians bounce back very hard as well. बात ठीक है, जिस तरीके से लास्ट गेम में ऑस्ट्रेलिया का जो एटीट्यूड था, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगा कि ऑस्ट्रेलिया वो जब ये अंडर प्रेशर होते हैं तो दे नो वन वे, और वो उनकी सिंपल थ्योरी है कि जस्ट गो हार्ड एट अपोजिशन। वो पिछले मैच में आपने देखा कि बॉलिंग में भी पार्टनरशिप लगी हुई थी श्रीलंका की, बट स्टिल वो एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें बाउंसर्स किए, उन्होंने कोशिश की कि इनको हमने जो उनका स्टाइल है अपनी बॉलिंग का मिडल ओवर्स में उस तरीके से अटैक किया उन्होंने, एंड देन दे बेसिकली केम बैक फ्रॉम नोवेयर। एक स्टेज पे लग रहा था 300 हो जाएगा और वहाँ से उन्होंने पुल बैक किया उसको, एंड द सेम वे दे स्टार्टेड इन देयर बैटिंग। वो अप्रोच थी पहली बॉल पे मिच मार्श ने जो सामने शॉट खेला, उससे ही पता चल गया कि वो दे हैव डिसाइडेड कि अब हम उस शेल में नहीं खेलेंगे। डेविड वार्नर ने जिस किस्म के शॉट खेले, सो वो अब एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, और आई थिंक कि आज भी उनका माइंडसेट यही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए स्टार्ट, चाहे वो बॉलिंग करें बैटिंग करें, इनिशिएटिव चाहिए। पाकिस्तान को भी वो इनिशिएटिव चाहिए, किसी न किसी को इंस्पायर करना पड़ेगा अर्ली ऑन। देन ऑब्वियसली फ्रॉम द लास्ट गेम जो पाकिस्तान के साथ हुआ, उससे एक दफ़ा बाहर निकल जाते हैं। जैसे कोई ऐसा आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस ऊपर से मिल जाती है, चाहे वो बॉलिंग करें बैटिंग करें, देन वो पिछली हार या पिछला जो कुछ भी है वो आपके जहन से निकल जाता है और आप उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से काउंटर करते हैं। इंटरेस्टिंगली शोएब, बोथ पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप के अंदर सिक्सेस मारने में दोनों के दोनों बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल हैं। सो हमारे पास ये स्टैट एक मौजूद है, अगर हम आपकी स्क्रीन पे ला सकें। सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि बेस्ट बॉल्स टू 6 रेशियो इन दिस वर्ल्ड कप 2023, न्यूजीलैंड इज राइट ऑन टॉप, ऑस्ट्रेलिया इज राइट एट द बॉटम ऑफ दैट, and Pakistan is just above them. It's a very interesting thing, but look at that. There's New Zealand, then there is Sri Lanka, South Africa, India, Afghanistan, Bangladesh, England, Netherlands, फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ा अनयूजुअल सा नहीं लगता स्टैट शोएब देखने में? बिल्कुल, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया का एंड में देखते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, मे बी इट्स अ फेक स्टैट, बट इट्स नॉट। मुझे ये लगता है कि जो उनके कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले बैटर्स हैं वो इनफॉर्म नहीं है, वहाँ से रन्स नहीं बन रहे। तो जो क्रिकेट जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, जिन पे बहुत सारे हैं उनके लाइनअप में, उनको फिर कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी पड़ती है, इसीलिए उनके जो सिक्सेस हैं वो बिल्कुल बॉटम में। तो यही एक वजह है। और अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है मिच मार्श ने रन्स बनाए, बट हम डेविड वार्नर को बाहर नहीं निकाल सकते। He likes to score against Pakistan. और लास्ट 300 ही स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जब आपने ऐसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट आपने 100 नहीं किया हुआ, 3 किए हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। तो हमें मिच मार्श तो एक अच्छा मैचअप है, शाइन जो है बॉल अंदर आए, वार्नर का भी है, बट वार्नर को रन्स नहीं बनाने चाहिए। वार्नर अगर रन्स बनाएगा तो जो ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत लीथल हो जाएंगे। ये सिक्सेस का जो स्टैट
स्टैट है ये भी Change हो ऊपर जा जाएगा, सकता है, बिल्कुल change चेंज हो हो जाएगा। सकता है. So early on wickets, as Misbah bhai said, is very important. Okay, let me bring this to you, Wasim, because Misbah pointed this out. There's a matchup, Shaheen Shah Afridi versus Warner versus Mitch Marsh and all. But we've seen Shaheen has not been bowling at 140 plus, what made him really lethal with the new ball up front. How does he go about his business when, because you said keep everything normal. Aapne ek advice bheji Shaheen Shah. Yeah, you can't change anything right now in the Right. middle of the World Cup. Before I get to Shaheen, first of all, also Matthew Hayden just said a little while ago he thinks Australia should make a change. He wants to see Cameron Green opening the innings with license to kill, and then because Labuschagne is out of touch, Right. and he said उसकी जगह इसको ओपन कराएं और 4 पे या 3 पे ले आएं, मे बी मिच मार्श को ले आएं. और नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली इफ यू वांट टू चेंज इट, लेट्स सी वो करते हैं. कमिंग बैक टू शाहीन, इज जस्ट हैविंग, आई मीन हर बॉलर हर मैच में विकेट नहीं ले सकता. इसकी थोड़ी शुरू में पहले ओवर में जो लाइन ऑफ स्टंप के बाहर से आती थी वो मिडल से आ रही है. इफ यू नोट, इंडिया के खिलाफ भी दूसरी तीसरी गेंद पे रोहित शर्मा ने इसको चौका मारा था, वो लेग स्टंप पे बॉल खत्म हो रही थी. सो ही शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग कि पहला ओवर मैंने ऑफ स्टंप के बाहर से लाना है और ऑफ स्टंप पे खत्म करना है. दैट्स वेयर आई थिंक ही इज गोना बिकम. जहाँ भी उसने आउट किए हैं उस लाइन से किए हैं, मिडल से अंदर आते नहीं किए. Okay, that's it. ट्रेविस हेड जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से पहुंच गए हैं इंडिया वर्ल्ड कप के लिए. That adds a lot of weight to Australia. अरे नेचुरली मेरा नहीं ख्याल है कि आज एकदम आते ही उनको खिलाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप आया. नो डाउट बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि आज इतनी जल्दी उनको मैच में खिलाया जाएगा. मेरा ख्याल है टॉप ऑर्डर में ज़रूर प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आज ऐसी कोई चेंज होगी. मिच मार्श को ही खिलाएंगे. मिच मार्श ने पिछले मैच में भी थोड़े से रन किए, 52 रन्स किए उन्होंने. वार्नर जिस तरह अभी बात हुई कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियसली बड़ा अच्छा स्कोर किया हुआ है. एंड देन बीइंग अ लेफ्ट हैंडर भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रेशर मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली ना. यहाँ पे टू हैंडल शाहीन शाह इन द बिगनिंग, आई थिंक ही इज़ द राइट चॉइस के ऊपर से उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए. Alright, we're talking about Pakistan versus Australia today in Bengaluru और हमारे पास एक मैच फीचर है. Let's take a look. Very nice sir. इमाम कह रहे थे कि हम भी वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया आज खेलेगी. If they come hard at us, we'll play the same kind of cricket. We wish the boys all the best with that. We're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back, there's more to talk about. Don't go away. Keep watching Sports and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. Today we go to Bengaluru where Pakistan clashes with Australia. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे मुख्तलिफ पहलुओं पे. But let's take you over to Bengaluru where we have the pitch report ready for you, brought to you by Onyx. वसीम बड़ी ज़बरदस्त बात की. उन्होंने कहा दिस इज़ अ गुड पिच, यू नो, इफ़ यूर अ बॉलर यू हैव टू कम विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड टू हैव फन. व्हाट डज दैट मीन? He also said that deception will be the best weapon spinners will have. Deception means variation, because turn कह रहा है होना नहीं है. Looks a very good pitch. Look at this, the roll लग रहा है rock hard, उसने बताया हमें, और जो घास है ये दूर है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. इससे ये होगा कि बॉल पड़ के स्किड करेगा ज़रूर, नया बॉल स्पेशली कैरी करेगा. And he also said it's a good pitch report कि there'll be a dew factor as well. Yeah. Quite a bit of dew factor. So अब टीमों को डिसाइड करना है कि the dew factor में टीमें क्या करती हैं, they try to chase because it's easier to bat. But it all depends what are their plans, what they want to do. But if you win a toss, ideally you would chase on this pitch. But then ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे 69 sixes. उसकी वजह इस ग्राउंड की कि इस ग्राउंड में 69 said. 69 ही said. 69 sixes he 3 said. games में. जी 3 games में. Yeah. That Because can't be right. okay, either 39 or we'll just 69. cross check. But I'll ask the still- production cross check कीजिए कि कितने छक्के लगे हैं इस ग्राउंड में. बट उसकी ये वजह है कि इस ग्राउंड में बॉल जो है बहुत फ्लाई करता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग यहाँ 2012 में खेले थे, उसमें भी हाँ वो थोड़ा लो स्कोरिंग था, T20 मैच था, बट यहाँ पे बॉल फ्लाई करता है. यहाँ पे IPL के मैचेस देख लें, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो यहाँ पे अक्सर क्रिस गेल और AB डिविलियर्स की आप इनिंग्स देखेंगे निकाल के, वो ग्राउंड से बाहर जाते थे. और सिर्फ शबी और शाहिद की बाउंड्री 60 to 263 meters. Miss hit can go
क्रॉस द Yeah, yeah, बाउंड्री, go over for six. स्पिनर को स्लॉग एक चीज स्वीप। जरूर यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहता हूँ, ड्यू फैक्टर उन्होंने जरूर बोला, बट वो जब सेकंड बॉलिंग करते हैं वो किस ओवर से स्टार्ट होती है ये बहुत ज्यादा डिपेंड आई करता है। थिंक इट विल शुड स्टार्ट बाय 7:30ish, 8ish. So basically, by the after 8 o'clock. 20th over, you're looking at क्योंकि 20वें 22वें फर्स्ट over तक. पंच जो है वो बहुत जरूरी होता Yeah. है। I'm going to ask you this because मिसबा हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ और अगर से ऊपर से ड्यू आ गई तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन चैलेंज वही है आपका सेकंड इनिंग में, जहाँ पे भी इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, सिर्फ ये वेन्यू नहीं, जहाँ पे भी मैचेस हो रहे हैं, अर्ली ऑन 15 ओवर आपकी फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलती है। बॉल जिप करता है, थोड़ा और तेज़ भी निकलता है और स्विंग भी होता है, तो वो अगर आप फैक्टर उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर लें तो देन इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। बाकी जो 30 ओवर हैं या 25 ओवर एंड के, अगर मैच वो बैलेंस उसका उस तरह है तो देन द टीम बैटिंग सेकंड उसको एडवांटेज है यहाँ पे। So let's see how both teams decide. Okay, and I have news for you, Wasim. There, yes, in the last 3 ODIs, 69 sixes. Jesus, 69 Yeah. sixes, I think 3 पिछले मैचेस। लास्ट कवर है ना ड्यू में, डेफिनेटली जी। ड्यू जिस वक्त आएगी तो, और हमने पिछले मैचेस में देखा जहाँ भी ड्यू आई है बॉल टर्न होता रहा, यू नो। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि there's not much for the spinners here, but the fast bowler will उसकी वजह ये है, मैं इनकी थोड़ी सी लेयर है ग्रास की उसके ऊपर, तो गेंद जब भी गीला होगा थोड़ा बहुत भी वो स्किट करेगा, बल्ले पे आएगा, तो चांस ज़रूर है बिल्कुल आपके लिए। लेकिन जैसे शोएब ने कहा कि वहाँ तक जाना ज़रूरी है, वेट करना ड्यू का, उससे पहले ना ऐसा हो कि आप किसी भी टीम के 3-4 आउट हो गए तो ओपोनेंट को फिर प्रेशर डालने में आसानी होती है ना। मोइन भाई कि अगर आप एक टीम ने 350 कर दिए हैं, अब ड्यू स्टार्ट होगी, जो सेकंड बॉलिंग शुरू हुई है वो 15वें ओवर से या 20वें ओवर से, अगर आपने 3 विकेटें दे दी हुई हैं पहले 15 ओवरों में, it's not going to be easy to chase even with the due, you mean? Even with the due, a big Even with total. the due. I agree with you. मुझे एक चीज़ लगती है कि ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली विल बोल फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि जो ग्राउंड है और जिस तरह की सिचुएशन है वो Would like to chase. they would like to chase, but पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ये एक मुश्किल सवाल है। वैसे होती नहीं है वो, दे डोंट आई मीन थिंक दैट वे। नॉर्मली भी अच्छी चाहिए, अच्छी अपनी पिचेस होती strengths पे खेलना है, चाहिए। हमेशा देखा है कि टॉस जीता उन्होंने जाके बैटिंग की है। उसकी एक और रीजन ये भी कि उनके पास फास्ट बॉलर्स है ना, अगर I think अच्छा, I ये- agree ये- with Misbah. I think वो chase करेंगे, knowing their mindset. Yeah, we've got Mokel with us. Let's just sit in. But there you have it, Misbah. Your thoughts? Not a bad, I mean, not a good news. He said Shaheen was suffering from viral infection, and that takes about 2-3 days to get recovery and get your strength back. I hope he's okay. I hope so too. In the event that Shaheen doesn't play today, who comes in? Any Wasim ideas? ही है बाहर। Huh? सेम ही है, Wasim ही है, I think Wasim Wasim Junior. is the I only think one. he will But play। that would be a वो जिस setback तरह to बात Pakistan. कह रहे हैं कि हमें लुक आफ्टर करनी पड़ी है उनको किस तरीके से ट्रेनिंग, बट मुझे लगता है खेलेंगे। थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर होगा, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट मैच में मेरे ख्याल में शाहीन खेलेंगे। I think वैसे भी so. वो यंग है, स्ट्रॉन्ग है, वो खुद खुद willing बोलेगा, होगा, वो खुद बिल्कुल, विलिंग बिल्कुल, होगा खुद खेलने। willing Yeah, he's होगा very खेलने। determined. He I'm is. told कि बहुत determined है वो, committed रहते हैं. You know, even with an injury or something, he would फील्ड always में be. भी आप देखें Yeah. तो बहुत इम्पोर्टेंट आज के मैच में तो शाहीन, स्पेशली लुकिंग एट अपोजिशन, दोनों जो बैट्समैन हैं, नए बॉल से शाहीन आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान के लिए इनिशियल ब्रेक थ्रूज के लिए। All right, with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports in the Airwise app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023. And today we're going to Bengaluru, जहाँ पे पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया है। उसके हवाले से हम लोग बात कर रहे थे और थोड़ी सी खबर आई कि शाहीन शाह अफरीदी की तबीयत ख़राब है. We just heard that from Mokel. Hopefully he's all fit and ready to go. But let's talk about Team Pakistan now. Of course, start करते हैं, by the way. Rizwan से शुरू करते हैं. Before we get on to that, we've got a feature on Rizwan. Let's take a look at this. I have nothing in life if I have no cricket. Wow, the strong words there. Absolutely Yeah. spot on. What a Yeah. player he has been for Pakistan. So consistent, a team man. ओपन भी की करता है T20 में, नंबर 4 पे भी आता है, वहाँ भी उसने स्कोर किया है, इस वर्ल्ड कप में 100 भी किया है. सो ही इज़ द राइट मैन फॉर द टीम. वो लड़कों ने कहा, हमारे शाहीन ने भी
हारिस ने भी यू नो दे सेट कि ये एक तो बाबर ने भी कहा है कि ये एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं बीइंग अ सीनियर प्लेयर एंड ऑफ कोर्स ही इज़ बीन सो कंसिस्टेंट फॉर पाकिस्तान इन लास्ट ईयर और टू। टेप बॉल क्रिकेट से इन्होंने भी अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, अभी आपने ये सुना होगा। मिसबा, व्हाट्स द रोल ऑफ टेप बॉल क्रिकेट इन पाकिस्तान क्रिकेट? बेसिकली बिकॉज यू आल्सो प्लेड टेप बॉल क्रिकेट। टेप बॉल क्रिकेट से जो एक फ्लेयर आता है आपके बैट्समैनों में, शॉट मेकिंग, ये बड़े शॉट, हालांकि रिजवान की बैटिंग से कहीं से भी नहीं लगता कि वो टेप बॉल खेला है। टेप बॉल के प्लेयर नॉर्मली बड़ी शॉट्स पे जाते हैं, बड़े शॉट मारते हैं, इफ्तिखार लगता है कि शायद टेप बॉल का प्लेयर होगा। या जिस तरह मेरी बेस थी शुरू में, मुझे बॉल रोकना या सिंगल्स से बिल्कुल नहीं आता था, बस हिट मारता था या रोकता था। तो ये बड़ी चेंज आई है इनकी ओवरऑल बैटिंग में। जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सक्सेस की वजह है, वो इनका टेम्परामेंट है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाके कूल रहते हैं, बड़े आराम से जाके असेस करते हैं और जाके उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। फिर जो डिफरेंट चीज़ है इनकी बाकी बैट्समैनों से, वो अगर देखेंगे जो स्पिन पे अटैक करते हैं, इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फीड यूज़ करते हैं, सामने मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर का ये शॉट बड़ा ज़बरदस्त है। फिर जो इनकी स्वीप शॉट्स हैं वो ज़बरदस्त हैं अगेंस्ट स्पिनर्स। तो स्पिनर को अनसेटल करते हैं और इसीलिए इनको रन्स मिलते हैं। और फिर मिडल ऑर्डर में आके द वे ही बैट्स अगेंस्ट द क्विकर बॉलर्स, क्योंकि ये ओपन करते हैं T20 क्रिकेट में, ही इज़ गुड अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स। ये जो शॉटें हैं इनकी, शॉर्ट हैंड जैब है या पुल शॉट है, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, दैट गिव्स हिम अ लॉट ऑफ रन्स। और ऐसे बैट्समैन हैं कि जो अपनी गेम को चेंज एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब वो छिक्के भी मारते हैं, चौके भी मारते हैं, रोटेशन भी है, क्विक सिंगल्स भी हैं, टेम्परामेंट अच्छा है। यही चीज़ें हैं जो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टन हिमसेल्फ, बाबर आजम। हम बात कर रहे थे कि वार्नर जो है, आपने शोएब जिस तरह पॉइंट आउट किया कि 3 सेंचुरीज हैं उनकी पाकिस्तान के खिलाफ और बड़ा लाइक करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करना। वहाँ बाबर आजम भी जो है, ऑस्ट्रेलिया उनकी फेवरेट टीम है, ही इज़ ऑल्सो गॉट 3 सेंचुरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ही गॉट अ वेरी गुड एवरेज अगेंस्ट कमिंस। थोड़ा सा हेजलवुड के खिलाफ थोड़ा जो है वो स्ट्रगल करते हैं, बट हाउ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट वुड बी बाबर्स रोल इन टुडेज बैटिंग? आई थिंक जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, 3 नंबर एक ऐसा ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। स्टैट्स हैं 9 मैचेस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इनिंग्स 9, और उसमें देखें उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो नॉट जस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट ऑल द टीम्स। जब वो खेलते हैं तो वो फिर लंबे रन्स बनाते हैं। जो लास्ट मैच था इंडिया के अगेंस्ट, आई वांटेड हिम टू स्कोर 100, लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन ये है कि आज नज़र अपॉर्चुनिटी, और जिस वेन्यू पे मैच है उनको सूट करती है, क्योंकि वो पेस को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ पे आज बॉल आएगा और वो थ्रू द लाइन उनको खेलना बहुत पसंद है। आउटफील्ड जो है इस वेन्यू की पूरे इंडिया में जितने भी ग्राउंड्स हैं बहुत तेज़ है और वो रिलाई करते हैं अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स पे। तो आज आइडियल सिचुएशन है, पेस उनको पसंद है, ग्राउंड जो है वो बहुत तेज़ है। सिर्फ एक चीज़ है कि कैप्टनसी को साइड पे कर दें जब वो बैटिंग करने जाएं, सो ही शुड जस्ट फोकस ऑन हिज बैटिंग। द डे ही डू दैट, ही कम्स आउट सक्सेसफुल और एंड ऑफ द डे वो हेल्प होता है टीम को। और ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और आज जो है आई थिंक ही शुड स्कोर 100। चारों के चारों आप लोग कप्तान रहे हैं। लेट मी बट ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू यू मोइन, कि क्या कप्तानी जो है वो आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर लोड डालना शुरू कर देती है, ज़्यादा प्रेशर ऐड कर देती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या वेरी करता है ये पर्सन टू पर्सन, और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमने सचिन को भी देखा कप्तानी करते हुए, विराट को देखा कप्तानी करते हुए, और ये मुझे नहीं लगता बाबर पे ऐसा कोई ऐसा प्रेशर होता है कप्तानी का। अगर उनकी नेचर देखी जाए तो बड़े कूल काम लगते हैं फील्ड के अंदर, यू नो, फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं, बट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचने की स्किल है ना, वो थोड़ी सी लैक करती है मुझे लगता है टाइम जब प्रेशर आता है पाकिस्तान टीम के ऊपर। अदरवाइज़ कप्तानी में मैं नहीं समझता कोई इतने बड़े उनके अंदर कोई ऐसे फॉल्ट रहे, बट हाँ जब प्रेशर कभी कभार आता है तो नज़र आता है वो क्लियरली गलत डिसीजन हो जाते हैं उनसे, यू नो। तो ये जैसे मैंने कहा कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत से ऐसे प्लेयर जो कप्तान रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी किया, टीमें भी जितवाई हैं अपनी, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वसीम, आप मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ के लिए डग आउट में रहे हैं, एंड यू बिन कम्युनिकेटिंग विद हुएवर योर ऑन फील्ड कैप्टन इज़ लीडिंग योर फ्रेंचाइज।
क्या थिंक टैंक को और एक्टिवली और एग्रेसिवली एंगेज करना चाहिए बाबर के साथ, ताकि वो उनका वर्कलोड शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि मे बी यू नीड टू डू दिस और समथिंग? क्या अलाउड है? आप लोग साइन लैंग्वेज वगैरह कर सकते हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? इजाजत है? जी सर, इजाजत है। नहीं, ये सब जो आपके मैनेजर, कोच, असिस्टेंट कोच, दे आर देयर टू असिस्ट यू एज अ कैप्टन। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी होता है, पाकिस्तान टीम में भी होता होगा। सारे जो हमारे कोचेज़ हैं वो उसको बताते होंगे, अपना ओपिनियन इनपुट देते होंगे। इट्स इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्किपर हिमसेल्फ व्हाट ही वांट्स टू डू। एंड एज अ कैप्टन ऑफ बाबर, हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन leading the side now? 2-3 years? 3 years. More than 3 years. 4 साल तक। 4 साल। 4 years. That's a long time to lead a side, and I think it's about time that he can, because ये आपको टाइम के साथ ही पता लगता है मैंने कब स्विच ऑन होना है एज अ कैप्टन, कब स्विच ऑफ होना है एज अ कैप्टन। जैसे शोएब मलिक ने कहा कि जब वो बैटिंग करनी जाएँ, दैट्स द टाइम वेयर ही शुड स्विच ऑफ एज अ स्किपर, फोकस ऑन हिज बैटिंग, एंड दैट्स कम्स विद प्रैक्टिस। सो अब 4 साल से आई सपोज उनको ये आइडिया थोड़ा हो गया होगा by now. Yeah, we're really looking forward to a big innings, a big century from Babar Azam, and today the stage is perfectly set, जैसा कि अभी शोएब ने भी बोला, and it'll be the best thing Pakistani fans can get, a big century from Babar Azam today. Let's talk about शादाब खान, चूँकि शुरू में हमने आज बात की शादाब की फिटनेस की बात की। ये शादाब का स्टैट आपके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं। 14 मैचेस उन्होंने खेले हैं इस साल, ये 2023 में, और 15 विकेट उन्होंने हासिल की हैं 42.60 की एवरेज से। That's just, is that good enough, Misbah? No, it's not. It's not right? good enough. बात यह है कि जब आप अपनी गेम के बारे में श्योर नहीं होते, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपको तो मौका ही नहीं मिलता कि आप सामने पोजीशन जिससे आप खेल रहे हैं उसके बारे में सोचें। जब आप अपनी स्किल, अपनी गेम के बारे में एब्सोल्युटली श्योर होते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा जी, अगर मलिक खेल रहा है सामने तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहाँ इसको बीट कर सकता हूँ। इट्स अ गेम ऑफ चेस, और आप खुद ही अपनी मूव्स के बारे में अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बेसिक्स आपके ठीक हों। जहाँ मैं बॉल डिलीवर करना चाहता हूँ वहाँ पे बॉल होना चाहिए, फिर ही मैं ट्राई कर सकता हूँ ना बैट्समैन के साथ। अगर तो मुझे यही नहीं कॉन्फिडेंस कि मेरा गेंद पता नहीं सही जगह पे आगे गिरेगा, अगर मैं फेंकना चाह रहा हूँ विकेटों में वहाँ गिरेगा या नहीं गिरेगा या पीछे ना हो जाए, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेग स्पिन दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल आर्ट है बॉलिंग में। एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी आप पहले फिनिश कर लें। फाइन, यू कैन। नाराज कर दिया आपने मिसबा को। नहीं, मैं नहीं, वो कभी भी नाराज नहीं होते। अगर उन्होंने नाराज तुमने होना होता वो सबसे पहले आपसे इजाज़त थैंक यू। देखें, एज अ स्पिनर जैसे वो बात कर रहे थे कि ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, लेकिन उनको अगर इसमें से निकलना है तो उनको ये देखना चाहिए कि लेग स्पिन पे मुझे ज़्यादा कंट्रोल आ रहा है या मुझे गुगली पे ज़्यादा कंट्रोल आ रहा है। क्योंकि उसकी एग्जांपल है, हमने जैम्पा को लास्ट उसमें देखा, उनका लेग स्पिन भी इसी तरह जैसे शादाब का गिर रहा है, उनका भी ऐसे ही गिर रहा है। कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप गिरता है, कभी फुलर गिर जाता है, कभी थोड़ा शॉर्ट गिर जाता है। वो शादाब के साथ भी हो रहा है। लेकिन एडम जैम्पा ने क्या किया, उन्होंने स्लाइडर्स पे आ गए, वो उनका जगह पे गिर रहा था बॉल, वो गुगली करना शुरू कर दिया, उनकी जगह पे गिर रही थी। तो शादाब को भी ऐसा ही करना चाहिए कि जिस पे एटलीस्ट आउट ऑफ 3 डिलीवरीज, जो जिसे हम वेरिएशन कहते हैं, एक तो हो गया स्लाइडर, हो गया गुगली, हो गया शादाब की अच्छी चीज़ है कि 2 टाइप्स ऑफ गुगलीज ही बोल्स, एक थोड़ा साइड से और एक कान के पास है। तो जो उनका गिर रहा है बॉल, उस पे ज़्यादा रिलाई करें, ताकि एटलीस्ट चांस बन जाएगा जिस जगह पे वो बॉल गिराना चाह रहे हैं, और बैट्समैन ज़रूर स्ट्रगल करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट उसामा मीर, बिकॉज बहुत सारी कॉन्वर्सेशन रही है कि मे बी उसामा मीर शुड कम इनटू द साइड एंड ऑल। उसामा मीर के बारे में थोड़ा मिसबा हमें बताएं। वी नो दैट उन्होंने ये जो पाकिस्तान कप है, जो ओडीआई होता है पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास, उन्होंने पिछले साल वहाँ पर 28 विकेटें ली। उसके बाद फिर इज कम अप द रैंक्स। मुल्तान सुल्तान्स के लिए 7.98 की एवरेज के ऊपर उन्होंने जो है वो विकेट्स हासिल की, 17 पिछले PSL के अंदर। सो टेल अस मोर अबाउट दिस यंग मैन। आई मीन, how strong is his foundation, his fundamentals? Very interesting story उसकी, कि जिस तरीके से PSL में पहले 4-5 साल वो टीमों में रहा, कराची किंग्स में भी रहा, उसको चांस नहीं मिला, and then he started putting on bit of weight, and I think after about a year or so इंजरी इश्यूज भी रहे, बैक का इशू रहा है, then he spent a lot of time
विद लाहौर कलंदर्स, वहाँ पे उन्होंने पूरा 1 साल लगाया है, वहाँ पे ट्रेनिंग की है, कंसिस्टेंटली बॉलिंग की है लंबी देर के लिए, और उसके बाद परफॉर्मेंस करके आया वापस, टोटली सीरियस लिया अपनी क्रिकेट को। ही वाज गुड। जब वो शुरू में कराची किंग्स से भी खेले हैं तो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन उसको कैरी नहीं कर सके उस तरीके से कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, स्पेशली जो पिछला साल था बहुत ज़बरदस्त था। और ये क्रिकेट में हम समझते हैं कि बाज़ टाइम गोल्डन डेज आते हैं कि जब आप जहाँ पे भी जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस एक फ़्लो चल रहा होता है, कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होता है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाइट का डिफरेंस ज़रूर है दोनों का, बट कॉन्फिडेंस इज़ द मेन थिंग। वो जहाँ पे भी खेला है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस करके आया है, विकेट्स लेके आया है, और मेरे ख्याल में राइट टाइम है कि पाकिस्तान उसको इस सिचुएशन में, अगर इफ़ ही इज़ हाई इन कॉन्फिडेंस, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी ये है कि बिकॉज ऑफ द हाइट ही गेट्स बाउंस। नॉर्मली जो लेग स्पिनर का गेंद, जिसको हम बुरा गेंद कहते हैं कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद गिरता है, मोस्टली जब ऐसे बॉलर होते हैं वही उनका विकेट टेकिंग बॉल हो जाता है, क्योंकि आप जब पीछे जाके उसको पुल मारने जाते हैं तो कई दफ़ा वो जो एक्स्ट्रा बाउंस है उसकी वजह से विकेट, और जो नॉर्मल अच्छी जगह पे बॉल गिरता है वो भी हाइट वाले बॉलर का इतना इजी नहीं होता उसको खेलना। दैट्स वाई ही इज़ पिकिंग विकेट्स। जहाँ भी जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। इज़ ए हैंडी फील्डर, नीचे आपको रन्स भी कर के दे सकता है। 100 में भी देखा आपने, वहाँ काउंटी क्रिकेट में भी जाके जब वो खेला है तो उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली है। But the other question rises now, a lot of people are talking about it कि जी उसको ड्रॉप करो, उसको खिलाओ। अब शायद आपके ड्रॉप होने से आपका टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा ख़राब नहीं होता, आपकी बैटिंग थोड़ी वीक नहीं होती? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 8वें नंबर पे जाना है उसामा ने, तो वो उसामा कोई ऐसा नहीं है कि टेल एंडर है, ही कैन कंट्रीब्यूट। 7वें नंबर पे भी नवाज आ रहा है बैटिंग करने, 7 तक बैटिंग, अगर 7 नहीं करते तो उसामा ने क्या करना है? एक चीज़ और है मोइन भाई, आपने ये देखना है कि आपके कॉम्बिनेशन को 10 ओवर्स की ज़्यादा ज़रूरत है या वो 15-20 रन की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि आपको 10 ओवर्स की ज़्यादा ज़रूरत है विद wicket taking option. That's a good point. That is, but here's another thing. Maybe Shadab doesn't need to be dropped. Maybe Nawaz can be switched over leg because spinners, I think you need variation, variety. so. Maybe that won't. वार्नर है ना, उनमें वार्नर है, अगर तो वो ट्रेविस हेड खेलता है तो एक और लेफ्टी आ जाएगा, वरना मोस्टली राइट हैंडर्स है, आपको वो चाहिए डिफरेंट जो है। एंड द रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप जो पिछला आप देखें, इस वर्ल्ड कप में भी देखें, स्ट्रगल कर रहे हैं मोस्टली जितने भी उनके बैटर्स हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसके बाद वो जहाँ पे भी खेल रहे हैं इन द मिडल, वो उस तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे लेफ्ट आर्म स्पिन को। बट मुझे जो लगता है नवाज का, जो मैं देख रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, बट जब उसको देखता हूँ मुझे लगता है एक तो उसका बॉलिंग थोड़ी छोड़ के कर रहा है उन विकेटों पे, जो पेस जडेजा की है उस पेस से नहीं कर रहा। मे बी उसके पास शायद वो वाली डिलीवरी नहीं है, बिकॉज वो वेरी करता है, पेस को ही वेरी करता है, ज़्यादा तेज़ नहीं करता बॉल। नवाज की बात कर रहा हूँ। आपने देखा है कि जडेजा जैसे बॉलिंग करते हैं, वैंडमर्व वो भी आके तेज़ मारते हैं उन पिचेस पे। हाँ, वो भी आके तेज मारते हैं। जिस तरह की ये पिच देखिए, ग्रास कवर है, इसके ऊपर तो आपको विकेट टू विकेट थोड़ा सा तेज लो ट्रैजेक्टरी पे गेंद करना पड़ेगा। जरा सा भी गुलतारा छोड़ा तो फिर इजीली बैट पे भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन सेंटर की तरह छोड़ सकते हैं आप आउटसाइड ऑफ स्टंप, आपकी जो रेंज है एज अ बैटर उससे दूर हो जाए। क्योंकि इस पे अगर देखें तो जब पिच रिपोर्ट दे रहे थे तो उसने वर्ड यूज किया था वेरिएशन फॉर अ स्पिनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टंप्स में ही करते रहेंगे विद स्मॉलर स्ट्रेट बाउंड्री, बड़ी मार पड़ेगी एज अ स्पिनर अगर बॉल टर्न नहीं हुआ। आपको वेरिएशन करनी पड़ेगी, कभी आप आउटसाइड ऑफ स्टंप चले जाएं, फील्ड प्लेसमेंट ऐसी सेट कर लें, लेकिन आपको एज अ बैटर, आपको एज अ बॉलर स्पिनर आपको ये पता होना चाहिए ये बैटर ऑफ साइड पे अच्छा खेलता है या लेग साइड पे अच्छा खेलता है, कौन से इसके स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये सेट खेल रहा है या नया आया है तो आप थोड़ा चांस ले सकते हैं। अगर सेट खेल रहा है तो ज़रा थोड़ा उससे दूर ही रहें, तो फिर आपके पास ज़्यादा चांस है। और मलिक यहाँ पे बड़ा मुश्किल है बॉलिंग, चाल करते थे यहाँ पे, क्योंकि वो खेलते थे अपनी IPL की फ्रेंचाइज, तो वो यही करते थे, ऑफ स्टंप के बाहर दूर फेंकते थे, और फिर एक आधा बॉल आपने लाइन लेंथ प्लस पेस
तीनों को वेरी करना है, फोकस करना है आपने बैट्समैन को, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन दिस वेन्यू फॉर स्पिनर्स टू बॉल। ये जरा एक स्टैट आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। वर्स्ट स्पिन बॉलिंग के हवाले से है 2023 की ओडीआई के अंदर। इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बिल्कुल टॉप पे है, because you can see the averages over there. Probably is not the right word. The right word would be stats बता रहे हैं। बदकिस्मती नहीं हुई आपका मतलब ये कि अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ये आपके हालात हैं इसमें। लेकिन इसको आप कंपेयर कर सकते हैं न्यूजीलैंड का भी, आप देखें, लेकिन वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो इसका मतलब है वो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, वापस फॉर्म आ गई है। अब हमारी बारी है, हमारा फॉर्म में आना जो है मिडिल ओवर्स में बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो बेटर देन अस ऑन दिस With that, we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back, we're getting closer to the action. Don't go away, keep watching Sports and Sports and the Airwise app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the Airwise app. Our continuing coverage of the ICC Men's World Cup 2023. आज हम आपको लेके जा रहे हैं बेंगलुरु, जहां पे पाकिस्तान का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से। बात हम लोग कर रहे थे अभी। एक और स्टैट आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। इसको जरा देखिए। ये स्टैट है ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस का पिछले 10 साल के अंदर ओडीआईज के अंदर। नाउ अगेंस्ट देयर बेस्ट रिकॉर्ड इन द लास्ट 10 years अगेंस्ट इज पाकिस्तान। ऐसी भी ना ही समझिए। क्यों दिखा रहे हैं? नहीं यार, मिसबा वो तो नहीं, अवेयर कर रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए स्टैट्स क्या। अगर पाकिस्तान आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराएगी तो नेचुरली एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा पाकिस्तान टीम के अंदर। ये मेरा ख्याल है। एक काम हम कर सकते हैं, वो ये वसीम से कहते हैं कि अपने ससुराल वालों से कोई सिफारिश वगैरह लड़ाएं, कुछ हमारे ऊपर हाथ कर रखें। 18 में से 15 मैच जीता हुआ ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 साल मैनू कह रहे ने तो फोन करके तू सिफारिश कर पाकिस्तान टीम को साथ ही मुझे तुम यार स्टक बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड। आज मैंने सुबह शनीरा से पूछा कि यू गोना सपोर्ट, शी सेड उसने वो मैंने जुमे वाली बात की, उन्होंने क्या 50-50। लेकिन उन्होंने आपसे नहीं पूछा। नहीं, पूछना नहीं था, बताना था। उस में ही बहुत सारे अहकामात थे, समझा कर। शोएब तुझे तो ज्यादा पता होना चाहिए। उस आप भी घर से ही आए हैं। हाँ, मैं भी आया हूँ, मैं भी से ही समझ जाता हूँ कि का क्या मतलब है। एक्सपर्ट प्रेडिक्शन जरा आज बाद में देंगे, अभी तो अभी हम उस पे I have no idea. Anyway, टॉस पे कर लेना। नहीं, एक चीज आखिरी, अभी टॉस पे तो जाना है, अभी तो we have some time to go to toss. I'm going to bring some conversation to you. मोइन, हम लोग लेग स्पिनर्स की बात कर रहे थे, स्पिनर्स की बात कर रहे थे। बेसबॉल के अंदर वो जो पीछे उनका जो कीपर होता है, वो बड़े इशारे करता है कि ए गेंद कर, तू ए कर, ये कर, यूं कर, पिच इस तरह कर। क्या आप क्रिकेट में भी कीपर्स इस तरह कोई कम्युनिकेशन करते हैं? बहुत ये करता था, कहता सीधी गेंद कर। नहीं, बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली लेग स्पिनर के ऊपर या सकलैन के ऊपर जब भी ये लोग गेंद करते हैं तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। एक तो विकेट कीपर हमेशा ऐसी पोजीशन में होता है जहाँ आपको बहुत इजीली जज कर लेते हैं बैट्समैन किधर इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है या कहाँ ज़्यादा ये प्रेफर कर रहा है खेलना। तो उस पर फील्डर्स अक्सर ऐसा होता था कि अगर मुशी गेंद कर रहा है और मिड विकेट पीछे लिया हुआ है तो मैं कन्वे मुशी को ज़ोर से आवाज़ सुना बैट्समैन को रहता हूँ कि यहाँ से सेव करना सिंगल, यहाँ से सिंगल, क्योंकि आप जब जाएंगे सिंगल करने क्रॉस दी बैट खेलेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस होता है कॉटन बोल्ड का कवर में अपिश चला जाए या पैर उठ जाए, पीछे से स्टंपिंग हो जाए, तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी बॉलर से वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप सुना बैट्समैन को रहे होते हैं बट कह उसको रहे होते हैं, तो बैट्समैन ये समझता है कि ये बॉलर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मुझे नहीं, तो उसमें डिसीव होता है, वो जाता है सिंगल। कीपर जो सबसे ज्यादा की शिकायत लगा रहे हैं, ससुराल टाइप माहौल बना हुआ है ना, सुनानी इसको है, कहनी उसको है, लेकिन सुनानी इसको है। आपको डिसीव करना पड़ता है। देखें, आप कोई अच्छा प्लेयर आ जाए, अरविंदर डिसिल्वा बहुत जबरदस्त खेला करता था। उनको समझ में आती थी जब आप उर्दू में बात करते थे? नहीं, उसको नहीं, मैं अंग्रेजी में थोड़ी बहुत मैं भी बोल लेता हूँ। सकलैन उसको बहुत अच्छा, सकलैन को बहुत अच्छा खेलता था क्योंकि वो एक्स्ट्रा कवर खेलता था थोड़ा सा उसका, तो वो जब दूसरा करता था तो बड़ा मुश्किल होता था किसी आम बैट्समैन के लिए ना उसको जज करना। तो नॉर्मली बैट्समैन सारे जाते थे इसको क्रॉस खेलने जाते थे, उसमें स्टंपिंग के बहुत, तो मुझे बहुत जल्दी जज हो जाता था कौन सा बैट्समैन क्रॉस खेल रहा है और कौन सा। तो अरविंदा के ऊपर मैं बहुत उसको बोलता था, समझाता था कि इसको दूसरा ज़्यादा नहीं करना। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन जाती है कोई बॉलर के साथ, जैसे आफरीदी था, आफरीदी को अक्सर वसीम भाई के साथ ये रखा हुआ था, वसीम भाई यूँ करेंगे तो स्लो बॉल करेंगे, मैं आगे आ जाता था, उसमें बहुत सारे कॉट बैंड कराए। आफरीदी का जो मैं बता रहा हूँ इशारा कर रहा है, वो तो नॉर्मली 6 दफ़ा ये इशारा करता था
इसका But मतलब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि फास्टर वन करने के ओके ओके उसमें सिर्फ ये देखा जाता था एज अ विकेट कीपर, मैं उसको बताता ये हाई बैकलिफ्ट प्लेयर है तो इसको तू तेज कर सकता है, जो एकदम अंदर आएगी तो मुश्किल होता है ऐसे हाई बैकलिफ्ट वाले को बॉल को कनेक्ट करना। आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट द टेनिस प्लेयर who knew कि वो सर्विस में सर्व करने से पहले वो जो है वो अपनी ज़ुबान सर्व करते हैं जिस तरह उन्होंने बॉल को सर्व करना होता है। I'll tell you this when we come back in post. This is a very good documentary that I saw on Netflix. Really. So he said कि I would actually, मैं वो देखता था, मैंने पहले तो मुझसे सर्व पकड़ी नहीं जाती थी, फिर मैंने नोट किया कि जिस तरफ इसकी सर्व जाती है इसकी ज़ुबान पहले उधर जाती है सर्व करते वक्त। I saw the tongue and I'm going to bring out the names. It's very big, the big names in tennis. I do, please forgive me for that, but I will bring out the names. But he said कि वो करते थे, कहते फिर मैंने कहा कि यार अच्छा मुझे समझ में आ गई है, कहते मैं उसकी बड़ी आराम से सर्व पकड़ लेता था, लेकिन मैं फिर जानबूझ के कभी कभार गलत वाली भी पकड़ता था ताकि उसको कभी ना पता चले कि वो है। And during that interview for Netflix, did his opponent find out? Okay, that's how he figured it out. This is the whole story to it. It's a really good story that I'd like to share. But what was your favorite जुमला जो अदर सीधी के अलावा from Moin Khan? मोइन खान अक्सर मुझे इंग्लिश कई में कुछ बोलते थे, दफ़ा पता मैं नहीं क्या वार्म अप बोलते थे। नहीं था होता या थका होता था, एंड ऑफ माय करियर काइंड ऑफ, एंड भी नहीं, जब भी दिल नहीं था कई दफ़ा कर रहा था, थके होते थे, स्टिफ होते थे, तो बॉल किया एक दो जोर नहीं लगाया तो पीछे से बात आती थी वेल डन लकी भाई। अब मुझे गुस्सा चढ़ता था उस पर। लकी भाई कौन थे? बताएं लकी भाई अभी बैंक से हमारे फॉर्मर क्रिकेटर लियाकत अली, उनकी इतनी पेस नहीं थी तो मैं वो कह के छेड़ता था वसीम भाई वेल डन लकी भाई। वो बड़े अच्छे बॉलर थे, बड़ी उन्होंने नहीं, फर्स्ट was क्लास good में आउट bowler, किए, तो सो मुझे ये फिर गुस्सा आता था, तो मैं भी जिस्म खोल के मैं फिर उसको रिवर्स स्विंग हो रहा बॉल करता था जो मिडिल लेग से लेग स्टंप की तरफ जाए। पूरा एंडेज बैंक ही कर रहे हो। ये कर्टेसी उन्हीं ये उंगलियां उसी का तोहफा है जो डाउन द लेग साइड वाले आपके सारे एग्जैक्टली है ना मोइन भाई, आप बहुत अच्छा लॉक खोलते होंगे जो वो राउंड वाला नहीं होता, क्योंकि पूरा ऐसे ही बनाना यूं बस यूं। बात बड़ी अच्छी की आगे चल बढ़े। यार टॉस मैं करवा भी नहीं सकता टॉस जब तक वो वहाँ पे टॉस पे आएंगे नहीं। अभी हमें पता भी नहीं कितना टाइम रहता है टॉस के अंदर, अभी तो क्लॉक ही नहीं है हमारे पास। बट अगेन अपनी स्टोरी सुना लो हाँ तो पूरी। सुना दीजिए। नहीं मैं नहीं भाई, हम जा रहे हैं टॉस पे। एक है हमारे पास भी एक शोबिस की फास्ट बॉलर थे, मैं पहली दफ़ा मैच खेलने गया तो उन्होंने कहा कि आप स्लिप पे खड़े हो जाए, मैं स्लिप पे खड़ा हो गया। अब वो मुझे बार बार कहने नहीं पीछे जाएँ, मैंने कहा अच्छा मैं और पीछे हो गया, कीपर भी के पीछे आ जाएं और फ़खर भाई पीछे आ जाएं, वो तो पीछे ही चलते चले गए। उसके बाद उन्होंने जब पहला बॉल किया तो वो 3 टिप्पों में कीपर तक पहुंचा, तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मैं आगे गया वो फिर मुझसे नाराज़ हो गए, वही वापस जाओ। फाइनली जब एज लगी ना तो 2 टिप्पों में आके ना मेरे पास स्लिप में, मैं कहा जी मैं थर्ड में ना चला जाऊँ, इससे बेहतर है कि वो करते हैं। सो देयर आर सम वेरी फास्ट बॉलर्स दैट यू हैव टू डील विद। वी आर गोइंग टू गो टेक यू फॉर द टॉस टू बेंगलुरु नाउ इन अ फ्यू मिनट्स। जी हाँ, toss brought to you by Samsung Flip, and the news out of Bengaluru is a good one for Pakistan. Fakhar-e-Alam has won the toss and elected to bowl, and there is one change जिसके वो हम सब anticipate कर रहे थे. Shadab gets left behind and Usama comes into the team. Good news for Pakistan, Misbah? मेरे ख्याल में जिस किस्म की कंडीशन है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को भी देखें तो वो भी बॉलिंग ही वॉज ऑल्सो कम्फर्टेबल विद बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि जब ड्यू पड़ती है और छोटा ग्राउंड है तो एटलीस्ट मेंटली थोड़ा सा आपको एक पीस मिलता है कि यार हम पहले बॉलिंग कर लें एंड देन सी। और दूसरी टीम को ये मुश्किल देंगे यहाँ पे टारगेट सेट करना, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, वो करते हुए कहीं पे अगर आप बीच में वो थोड़ा पटड़ी से उतरती है बैटिंग तो देन यू हैड अ चांस। बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। मेक श्योर करें कि डिसिप्लिन बॉलिंग, ऊपर से विकेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट करना ऐसे टोटल पे कि जहाँ पे आप उसको चेस कर सकें। What we got the playing 11s coming in. We have the Australian playing 11. Wasim, take us through. This is the Australian no playing change in Australian squad. Warner, Marsh opening the inning. Both are in good nick, especially Marsh got 50 in the previous game. Smith is looking out of touch. Labuschagne is also got some runs but not looking that great. And English looks really good. Maxwell got some runs. Stoney is another all-rounder. Then Cummins can bat, Stark can bat, and Zampa and Hazelwood. So yeah, same side. 1, 2, 3.5 fast bowlers and 2 spinners. Right, Shoaib, take us through the Pakistan squad. Imamul Haq, Abdullah Shafiq, Babar Rizwan, Saud Iftikhar, Nawaz, Usama. जो आज चेंज है शदाब की जगह हसन, शाहीन एंड राउफ। जो हाई एक्सपेक्टेशन है पहले 3 से हैं
और सेम अटैक है एक्सेप्ट शदाब की जगह उसामा आए हैं, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। और अच्छी चीज़ ये है कि ड्राई बॉल से बॉल करेंगे और ये अच्छी चीज़ हो गई है। और उन्होंने जो वार्म अप मैच हुआ था, ही टुक 2 wickets as well. Right. So There's confidence there that he has. What would be a good total for Pakistan to restrict Australia? किस कहाँ पर उनको यहाँ पर फंसाएं? मैक्सिमम 250 रन होने चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है वो बेटर है इन कंडीशंस के अंदर। 250 रन थोड़े कम नहीं है उस ग्राउंड के लिए? लेकिन नहीं, रन तो कम है, लेकिन आप बॉलिंग देखें, जो पिछले मैच में उन्होंने अटैक किया उनके खिलाफ बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला था श्रीलंका को, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी ऑफ अटैक था वो थ्रू आउट आके बाउंसर्स कर रहे थे, उसको टैकल करना पड़ेगा। तो कि पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स, फास्ट बॉलर को बेहतर खेलती है टीम, और बाबर का रिकॉर्ड भी हमने देखा था, लेकिन फिर भी मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अगर बाउंसर्स यहाँ पे हुई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम बाउंसर्स इतना अच्छा खेलती है, उस पर विकेट गिरेगी, प्रेशर आएगा, तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम 250 और 260 पे। All right, with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, it's time for expert predictions and the player to watch out for. Don't go away. All right, welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app. And in the Pavilion, I'm joined by 4 Pakistani former captains and great cricketing minds. With Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. और हम लोग बात कर रहे थे, टॉस जो है वो पाकिस्तान ने जीत लिया, बाबर आजम ने. And Babar Azam is elected to bowl first, but Pakistan is going to be making a chase out of this one. And हम लोग बात कर रहे थे कि कितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बॉलर्स के ऊपर. क्या इस वक्त स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स? आइडियली कोशिश करें कि 11 रन पे उन्हें आउट कर लें। आइडियली 11 थे। वसीम भाई की मजबूरी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ी सिंपैथी से ऑस्ट्रेलिया नो आइडियली ऑब्वियसली चाहेंगे कम से कम रन्स पे आउट करें इन्हें। जैसे मोइन ने कहा 250 वुड बी आइडियल, 270 में भी बॉल ने गीला भी होना है। इट्स अ गुड बैटिंग डेक, बट यू सी आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंड कि ड्यू पड़नी है। उन्होंने प्लान किया होगा कि टॉस जीत के हम पहले बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान ने। चेज़ में हमारा कोई रैकेट इतना अच्छा नहीं है, आई होप आई एम रॉन्ग, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन टॉप ऑफ माई हेड। और चेज़ में 2-1 विकेटें गिर जाएं, अगर रिजवान या बाबर में से कोई एक चला जाता है, सो प्रेशर माउंट होना शुरू हो जाएगा अगर वो 300 तक कर गए। सो लेट्स होप कि वी गेट अर्ली ब्रेक थ्रू, लेट्स होप Shaheen will get his mojo back in the first 2 overs. Oh, I love the word mojo back. I hope he gets his mojo back. And with that, it's time for the expert predictions brought to you by Pavilion Natural. Misbah, let's start off with you, Misbah. Expert predictions. पाकिस्तान जी, पाकिस्तान। Pakistan. All right, Waz. Look, I'll give 55 to Australia, 45, if my math is right. To Pakistan. जुबी वाली गल कर दी थी ना, ये तो वही चलना शुरू हो गया। दोनों साइड कभी खुश नहीं रह सकती, एक को I'm रखना है। giving 55-45. That's quite a bit. एक टीम बताए ना, I'll pick Australia. I want Pakistan to win, but Australia. Okay. Ooh. ससुराल का प्रेशर ही बहुत ज्यादा है। This is ये। मैं स्किपर के साथ जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी। तो हमेशा स्किपर के साथ ही जाइएगा आप, ठीक है ना? शोएब मलिक? कहाँ जाते हैं आप? लो जी, ओनू भी बड़ी दस दे हो यार, ये बाद में इधर बता दे भाई मुझे पहले तू क्या करना है, ये बाद में कर लेंगे, यहाँ बता दो क्या करना है। हाँ, दिल तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया। Okay, so the experts have predicted. Those were your expert predictions brought to you by Pavilion Natural. All right, with that, it's time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. We do apologize for that. Again, it is player to watch out for, brought to you by Ufone. So I'll just start off the segment right here. So Shoaib, let me ask you, player to watch out for you. बाबर आजम। Babar Azam, Captain Babar Azam. Okay. Moin? Mitchell Stark. Mitch Stark. All right, Wasim? I'll go for the young boy, Osama Mir, I reckon. Osama Mir, great. And Misbah? बाबर रिजवान, 8-bit गुल खान, 8-bit वो आगे कुछ कहने लगे थे। 8-bit गुलकंद। तू जल्दी ना बोला तो तेरा मुंह बंद। बाबर लिखा था, लेकिन चलो बाबर बाबर ही कर, रिजवान कर दो। दोनों ले लें। बाबर Rizwan. All right. And those are your players to watch out for, brought to you by Ufone.
All right, we have the predictions in and we have the players to watch out for, and we're really looking forward to that. Last minute reh gaya hamara, so we're praying for Team Pakistan all the best. Yes. The tennis story I was telling you about was Andre Agassi talking about Boris Becker's serve. Unki zuban jo thi unko batati thi. And Misbah के लिए क्या पैगाम था शोएब आपका? 8-bit गुलकान आज तेरी आवाज बंद. ठीक है ना? सही है, वैसे ही बंद है. आज खाना जो मंगाया उसके बाद तो मेरा हाँ बिल्कुल जनाब, आज खाना भी हमने बिल्कुल मिसबा की तबीयत के मुताबिक जो है वो मंगवाया है. मैंने मंगाया है चिकन सैलड ते बाद विच फिर ऑर्डर होया है बीफ बिरयानी ते पाने की मंगाया सी चपली कबाब. 20 किलो कढ़ाई ते 4 टन गोश्त. लेकिन वो रास्ता छोटा है, एडा बड़ा ट्रक नहीं बढ़ना अंदर. चलो कोई नहीं. Anyway, guys, we are hoping for a great game of cricket. We wish Pakistan team all the best. We want to see a victory. We want to see momentum in the Pakistan cricket team's campaign for this World Cup. I know there's been a bit of a setback, but Babar Azam, we have faith in you and your entire team. All the best to Team Pakistan. We will see you in between the innings. Keep watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app.